Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the heritage of India written by A.L. Basham. His full name was Arthur Llewellyn Basham. He was born on 24th May 1914 at United Kingdom and was died on 27 January 1986 in Calcutta with the disease of cancer. He was suffered from cancer and was died on 27 January 1986. He was the person who had got the nationality of two countries, Britain and India. He was a very good writer and also a historian. He had got his education at Shaw's University of London. After that, he became the professor of School of Oriental and African Studies, London. He had written many books, and some of them are The Wonder That Was India, History and Doctrines of Ajivikas, The Shepherd Cow. He had written many books about the Indian culture and Indian society. The prescribed lesson, the heritage of India, is adapted from the book The Wonder That Was India. He was a well-known and a very good writer. In this very lesson, the heritage of India, he had described about the heritage of India. He explains that how time by time the Indian reformers have done for the progress of Indian society and to conserve the Indian heritage. इस पार्ट में जो हमारा पोएट है उसने बताया है कि किस तरह से जो भारतीय विद्वान हुआ करते थे, भारतीय समाज सुधारक हुआ करते थे, उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं को, प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षित करते हुए अपने देश भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। किस तरह से उन्होंने एक्ट किए उसके बारे में उन्होंने इस पार्ट में बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस आवर टेक्स्ट बुक, लेट्स सी and learn the lesson. Ram Mohan Roy had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekananda repeated it with a more nationalist timbre when he declared that the highest form of service of Great Mother was social service. Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as the religious duty, and the development continues under Gandhi's successors. In this very para, the writer wants to describe that the social reforming which begins from Raja Ram Mohan Roy. He educated to the development of the society, which was later improved by the well-known, very wise, a young and very energetic person, Swami Vivekananda. And after that, many Indians followed to progress our India and make this aim to their duty. And one of them was Mahatma Gandhi, who worked very hard to the progress of India. And after him, his followers had adopted his aim and his duties. Dear students, इस पैराग्राफ में जो हमारा राइटर है A.L. Basham, उसने बताया है कि राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य माना है और समाज सेवा के कार्यों से ही अपने समाज सुधार का श्री गणेश किया है। एंड विवेकानंद रिपीटेड इट, और जो स्वामी विवेकानंद नाम के बहुत ही
विख्यात महापुरुष हुए उनके बाद उन्होंने इसको दोहराया। उन्होंने समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य माना और उसे एक राष्ट्रवादी स्वर के रूप में, मीन्स होल कंट्री वह चाहती है, इस रूप में वह उन्होंने इसको व्याख्या किया इसकी कि अगर समाज सुधार नहीं हो सकता, अगर हम अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकते तो किसी भी देश का उत्थान संभव नहीं है। एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर, और यही हमारे राष्ट्र की, हमारे महान भारत देश की सेवा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्या कि हम अपने समाज का उत्थान करें, हम अपने समाज का सुधार करें। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य जो दूसरे महान भारतीय थे, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, जिनके मुखिया महात्मा गांधी थे, डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, जिन्होंने कि समाज सुधार को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में माना। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर, और यह कार्य अभी भी गांधी जी के अनुयायियों द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा अभी भी किया जा रहा है। यह कार्य अभी भी जारी है। महात्मा गांधी was looked on by many, both Indians and Europeans, as the epitome of Hindu tradition. Epitome, the means symbol. Gandhi ji was realized as the symbol of Hindu tradition. गांधी जी को हिंदू प्रथा का एक प्रतीक माना जाता है, न केवल भारतीयों के द्वारा। हिंदू प्रथा, परंपरा और प्रथाओं का प्रतीक माना जाता है न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि यूरोपियंस के द्वारा भी। बट दिस इज अ फास्ट जजमेंट फॉर ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, बट समहाउ इट सीम्स फास्ट टू आवर राइटर ए.एल. वॉसन because he was much influenced with the western ideas। लेकिन हमारा जो राइटर है ए.एल. वॉसन, वह गांधी जी को हिंदू परंपरा का प्रतीक नहीं मानता, क्योंकि वह कहता है कि गांधी जी अधिकांशतः, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज मीन्स गांधी जी ज्यादातर किससे प्रभावित थे? पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। And Gandhi believed in the fundamentals of his ancient culture, but his passionate love of the underdog of his antipathy to caste thought not unprecedented in ancient India. Gandhi ji believed in Indian culture, but as a caste feeling, he was revolting against the Indian ancient culture. गांधी जी अपने देश की प्राचीन संस्कृति और मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, किंतु उनका यह स्वभाव कि वह कमजोरों और जाति प्रथा से संबंधित जो उनका विचार था वो पुरानी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत था। हमारी भारतीय संस्कृति समाज को 4 वर्गों में विभाजित करती थी, लेकिन गांधी जी का मानना था कि सब में समान भावना होनी चाहिए, और इस रूप में वह प्राचीन विचारों से अलग थे। और मोर टू यूरोपियन, और उनकी यह जो भावना थी वह पश्चिमी देशों से संबंध रखती थी, पश्चिमी सभ्यता का असर थी। एंड 19th century liberalism than to anything Indian, and for these ideas he was influenced with the 19th century western countries। 19वीं शताब्दी में भारतीय तत्व की अपेक्षा वे 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अधिक ऋणी थे, यानी वह उसी में ज्यादा विश्वास रखते थे कि जब भी, जैसे कि राइटर ने डिस्क्राइब किया कि महात्मा गांधी भले ही हिंदू परंपरावाद के विश्वास रखने वाले थे, लेकिन वह कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित थे। इसलिए जो जातिगत व्यवस्थाएं थी उनके लिए गांधी जी कहते थे कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, और यह किसी न किसी रूप में जो प्राचीन हमारा कल्चर था उसके विपरीत था, क्योंकि प्राचीन कल्चर में समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। एंड हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज
as we have seen, by no means typical of Hindu, his predecessor in revolt, the evil Maratha Brahman B.G. Tilak and Gandhiji's impatient Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect. And as his non-violence realization, his more closed colleague Bal Gangadhar Tilak and Subhash Chandra Bose was not with him with his these ideas. They was the revolting against it. इसके अगेंस्ट हुआ करते थे। भले ही उनके विचारों को, उनके अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे, फिर भी बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे दो उनके सहयोगी थे, वह उनके इस विचारों से सहमत नहीं थे। अहिंसा में उनका विश्वास किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का प्रतीक नहीं था और इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जी उनसे विद्रोह रखते थे, उनके विचारों को मानते नहीं थे, वो अधिक रूढ़िवादी थे। For Gandhiji's pessimism, we must look to the Sermon on the Mount and to Tolstoy. और गांधी जी के पैसिमिज्म मीन्स द नॉन वायलेंस मीन्स शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए हम ईसा मसीह के द्वारा, सर्मन ऑन द माउंट एक उपदेश है जो ईसा मसीह ने पर्वत पर उस सटन को दिया था, शैतान को दिया था। कहते हैं कि गांधी जी के जो शांतिवाद के लिए हम पश्चिमी सभ्यता को क्यों मानते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने शैतान को उपदेश दिया था और टॉलस्टॉय की कहानी में इस तरह से बताया गया है। इसलिए गांधी जी का जो शांतिवाद था वह इससे संबंधित था। एंड हिज championing of women's right is also the result of Western influence. And when he advocated the women rights, it also was influenced by the Western culture. और नारियों के लिए जो वह बहुत अधिक वकालत करते थे कि नारियों का उत्थान होना चाहिए, यह भी पश्चिमी सभ्यता से ही प्रेरित था, पश्चिमी सभ्यता का ही परिणाम था। In his social context, he was always rather an innovator than a conservative. In his social context, means समाज के संदर्भ में he was always rather an innovator than a conservative. वे सदैव ही परंपरावाद की अपेक्षा नवीन विचारों के प्रतीक प्रवर्तक माने जाते थे। इनोवेटर मीन्स नवीन प्रवर्तक, और कंजर्वेटिव मीन्स होता है परंपरावाद। परंपरावाद की अपेक्षा नव प्रवर्तन को ही, नवीनता को ही अपना, नवीनता के ही प्रतीक माने जाते थे। Though some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow, some of his colleagues realized that the program of social reformation is slow. वो उनके कुछ साथियों का भी मानना था कि जो समाज सुधार का उनका यह कार्यक्रम है, उनका यह तरीका, इनका कार्य है, वह कहीं न कहीं धीमी गति का है, उनकी गति जो है वह धीमी है। And he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social in place of hierarchy of class and caste. भले ही उनके अनुयायी और उनके साथी उनकी विचारधारा को और उनके कार्य करने के तरीके को धीमा मानते थे, फिर भी उन्होंने अपने कार्य करने के इसी तरीके के साथ और श्रेणीबद्ध वर्ग और जातिगत विचारों के साथ ही समाज को सुधारने का एक अनूठा कार्य उन्होंने किया और उस समाज की उन्नति के लिए कई सारे कार्य महात्मा गांधी जी ने किए। गांधी जी एंड following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhiji and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture. After centuries of
stagnation, following up the work of many less well-known 19th century reformers. मीन्स 19वीं शताब्दी के वेल नोन मीन्स बहुप्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्यों का अनुसरण करते हुए गांधी जी और उनके अनुयायियों ने given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation, after centuries of slowness, after centuries of sleeping, means शताब्दियों की जो निष्क्रियता थी हिंदू सभ्यता को, उसको उन्होंने एक नया मोड़ और एक नया जीवन देने का प्रयास किया। किसके आधार पर? 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों का अनुसरण करते हुए। Dear students, read the chapter till here with the help of this video. We will meet with the next part of this video, this chapter in the next video. Till then, thanks.